Now let's start with chapter number 3, varied climates. Now in this chapter we will study about weather and climate. What are the natural factors that affect our climate? And then we will see about some human impact on climate. Climate पे human का क्या impact? Human का क्या impact है climate? Weather can be of different many times in a day. It can be chilly early in the morning, very hot by the midnight day, raining in the afternoon, pleasant in the evening. Most of the places में जो weather है वो अपने form को change करती है minute to minute, hour to hour, day to day and season to season. Weather is the condition of the atmosphere. वो condition है atmosphere की over a short period of time, जैसे आपको the factor temperature, rainfall and humidity जो होता है वो करता है weather को affect करता है. On other hand, climate is the average of weather for a long period of time. Climate is different from place to place. So the climate of Antarctica, where it is very cool, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है. Climate in Africa, where it is very hot, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है. और जो change in the climate results in the change in the season. और जो हमारा climate है वो भी describe करता है कि जो very hot summers, a hot monsoon, and the atmosphere that surrounds the earth is constantly changing. Changing in the atmosphere is studied and recorded by meteorologists. Different factors हैं जो आपके climate को affect करते हैं. Some places are hot while some are wet. Given below are the natural and the man-made. Now we will study about some natural and man-made factors जो क्या करते हैं आपके climate को affect करते हैं. First is natural factors that affect the climate. Proximity to the equator. The proximity है to the equator वो क्या करते हैं climate of the place को affect करते हैं. The equator receives more direct sunlight than anywhere else on the earth. This is due to its position in relation to the sun. जब equator क्या होता है near to the sun होता है ज़्यादा गर्मी होती है ज़्यादा फटा होता है because sun has less area to heat. On the other hand, north pole में और आपके south pole में क्या होती है गर्मी होती है ठीक है and sun rays are slanting in this day क्योंकि जो sun rays होती है ना वो slanting पड़ती है इस तरीके से पड़ती है इस वजह से. Now we will study about the climatic zones. पहले मैं आपको explain कर देती हूँ climatic zones पढ़ेंगे फिर हम. This is your 0 degree equator. This is 23.5 north. This is 23.5 south. ये आपका Tropic of Capricorn है. This is our Tropic of Cancer. This is your 66.5 south. This is your 66.5 north. ठीक है. Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में एक जोन लाई करती है जिसका नाम है टॉरिड जोन. इस जोन को क्या कहा जाता है? This is known as टॉरिड जोन. इसे क्या बोला जाता है? टॉरिड जोन, which lies between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ठीक है. Between Tropic of Cancer and Arctic Circle, a zone lies that is known as temperate. North में है तो North Temperate Zone, South में है तो South Temperate. तो Arctic Circle और Tropic of Capricorn के बीच में लिंक क्या लाई करती है? This is your temperate. ये क्या है आपकी टेम्परेट जोन ठीक है. एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल वी हैव एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में भी क्या है आपकी टेम्परेट जोन है लेकिन साउथ में लाई करती है तो आप लिखोगे साउथ टेम्परेट जोन. और आपकी आर्टिक सर्कल से नॉर्थ साउथ आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल इट्स अ फ्रिजिड जोन. ये कौन सी जोन होती है? दिस इज योर फ्रिजिड जोन. और आपकी एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल भी आपकी क्या लाई करती है? फ्रिजिड. नाउ लेट्स स्टार्ट द climatic zones. The earth is divided into 3 climatic zones. ठीक है, that is torrid zone, temperate zone and आपकी frigid. The region between Tropic of Cancer in the north and Tropic of Capricorn in the south. कौन सी जोन है? टॉरिड. इन्हें हम ट्रॉपिक्स भी कहते हैं.
It is closest to the equator and sun is directly overhead. And the torrid zone forms hottest region in the world. जिसमें आपका अफ्रीका, आपका साउथ एशिया, सदर्न एशिया, इंडोनेशिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका सब आए. रीजन जो किसके बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं. द सन जो होता है यहाँ पे कभी भी डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होता है. जो जोन होती है माइल्ड होती है एंड जनरली रेंजिंग फ्रॉम वार्म टू कूल. और जो नॉर्थ टेम्परेट जोन होती है उसमें आपके ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप, नॉर्दर्न एशिया, नॉर्दर्न अमेरिका. साउथ टेम्परेट जोन में सदर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सदर्न साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका है. जो एरिया है दैट इज नॉर्थ ऑफ आर्टिक सर्कल एंड द साउथ ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल, वो परमानेंटली आइस से कवर्ड होता है, तो उसको हम फ्रिजिड जोन, फ्रीज हो गया तो फ्रिजिड जोन कहा जाता है. एंड द फ्रिजिड जोन और अ पोलर रीजन इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ. फ्रिजिड जोन को हम क्या कहते हैं, आर्टिक सर्कल्स को इंक्लूड करते हैं इसमें आपके नॉर्थ कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न एशिया. साउथ फ्रिजिड जोन में आपका कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका होता है. यहाँ पे माइल्ड मिडनाइट सन होता है. व्हेन द सन डज नॉट राइज एंड सेट फॉर 24, वो राइज ही नहीं करता 24 आवर्स के लिए, क्या हो जाता है, सेट हो जाता है. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देखो जो सी है इसका जो सी भी क्या करता है, हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. ठीक है, ब्रीज दो तरह की चलती है, एक तो सी ब्रीज होती है और एक लैंड ब्रीज. जो सी से लैंड पे चलती है लैंड ब्रीज, लैंड को सीट. Coastal areas are cooler and wetter than inland areas. This is because clouds are formed when warm air forms inland areas and moves the warm air. These clouds give rain in the coastal area. On the other hand, the center inland होता है आपका एरिया का, वो बहुत ज़्यादा hot and dry होता है. And it reaches the area Chennai, which is located on the eastern coast of India. यहाँ पे humid और कैसा climate होता है, moderate climate होता है in comparison to Delhi, which is hot summer और cold winter. ठीक है, हॉट समर होती है, कोल्ड विंटर होती है इन इनलैंड एरिया. नाउ डायरेक्शन ऑफ विंड. विंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन द एयर टेम्परेचर. जैसे एयर हीट होगी, ठीक है, इट राइजेस एंड कूलर रशेस टेक द प्लेस एंड कूल विंड्स जो ब्लो करती है वो क्या लेके आती है, बारिश लेके आती है. देखो बहुत ठंडी हवा चलती है तो उसके बाद बारिश आती है. हॉट विंड्स एंड ब्लो एंड हॉट रीजन बीइंग ड्राई वेदर टू इनलैंड एरिया. जैसे विंड्स दैट ब्लो टू ब्रिटेन फ्रॉम कोल्ड इंलैंड एरियाज नीदरलैंड, ये कोल्ड होती है, ड्राई होती है. और ब्रिटेन को कैसे बनाती है, ठंडा वाला. एल नीनो ये एक रेगुलर वार्मिंग है ऑफ द सरफेस वाटर जो पैसिफिक से आती है. रिलीफ की अगर हम बात करें, क्लाइमेट कैन बी अफेक्टेड बाय माउंटेन रिसीव मोर रेनफॉल दैट अदर एरिया. बिकॉज द टेम्परेचर होता है टॉप ऑफ द माउंटेन का वो लोअर होता है देन द टेम्परेचर एट द सी लेवल. That is why there is snow on the top of mountain all around. High above sea level, उसको height जो above the sea level होती है उसको क्या कहा जाता है, altitude. और higher the place is above sea level, colder it will be, and this happens because altitude increases, iron becomes thinner और ये less heat absorb. ठीक है, human impact on climate. The factor that you have studied will now in this chapter affect the climate next. However, you should know that human also influence the climate. Climate is affected and gets changed because of our activity. We cut down trees and trees क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं in the atmosphere, and that is the example of industrial revolution हमारा start हुआ था in the end of 19th century and has a huge effect on climate. Invention of motor engine, burning of fossils, इससे क्या हो रहा है, pollution हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में. और इसने क्या इंक्रीज करा है, जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर दिया है एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. ऑल सच ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्लोली क्लोजिंग द प्लैनेट टू ग्लो वार्म. इस फिनोमेना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो फिनोमेना है वो क्या कॉज करता है, ग्लोबल वार्मिंग. एंड वी मस्ट फाइंड आउट द वेज टू रिड्यूस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट. नाउ व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर टुडे? यू हैव टू राइट द फोरकास्ट ऑफ द टुडे. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.